सतगुर माहि समाना। एह बाणी जो जियो जाने, तिस अंतर रवै हर नामा। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मानै, परतख गुरु निस्तारे। बाणी बिरलो विचारसी, जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की, निज कर वासा होए। गुर मंत्र निसह जो प्राणी, त्रिगंत जन्म परष्टन। कुकर शुकर गर्दब, काक सर्पण तुलखल। चरनार बिंद भजनं हृदयं, नाम तारण। कीर्तन कीर्तनं साध संगेन नानक, नह दृष्टंत जम दूतन। नाच दुर्लभं तनं रूपं, नाच दुर्लभं स्वर्ग राजन। नाच दुर्लभं भोजनं विंजनं, नाच दुर्लभं स्वश अंबर। नाच दुर्लभं सुत मित्र प्रात बांधव। नाच दुर्लभं बनता बिलास, नाच दुर्लभं विद्या प्रवीणं। नाच दुर्लभं चतुर चंचल, दुर्लभं एक भगवान नाम। नानक लभदियं साध संग कृपा प्रभं, दुर्लभं एक भगवान नाम। नानक लभदियं साध संग कृपा प्रभं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
ਸ਼ਲੋਕ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ 3 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਬਾਬਾ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੰਪਰਦਾਇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੁੰਡਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। 4 ਦਿਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਾਸ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਦਾਇਗੀ ਵੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਪਰਸੋਂ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੈ। ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਹਾਲ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਉਮਾ ਸ਼ਰਧਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੱਲ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕੋਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਘੱਟ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਉ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਦੇਰ ਆਇਦ ਦਰੁਸਤ ਆਇਦ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮੀ ਜਲਾਓ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ। ਕੌਮੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਮੀਰ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ, ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਬਖਸ਼ਣ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਣ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੀਏ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਲਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਸ਼ਲੋਕ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦੇ 3 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਪਾਲ ਗੁਰ, ਗੁਰ ਪੂਰਨ ਨਾਰਾਇਣ ਹੈ। ਗੁਰ ਦਇਆਲ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰ, ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪਤਤ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਜੁਮਲਾ ਰੋਜ਼ੀ ਖਾਰੇ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਬੈਜ਼ੇ ਹਕ ਇਮਤਾਰੇ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਬਰਦੋ ਆਲਮ ਦਸਤੇ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, जुमला उलवी पस्त गुरु गोबिंद सिंह।
ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਹੋ। ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਕ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਪਾਕ ਬਾਣੀ ਦੀ ਜੋ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਹੀਣਸ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤ੍ਰਿਗੰਤ ਜਨਮ ਭ੍ਰਸ਼ਟਣ ਹੈ ਕੂਕਰ ਹੈ ਸੂਕਰ ਹੈ ਗਰਦਵ ਹੈ ਕਾਕ ਹੈ ਸਰਪ ਨ ਹੈ ਤੁਲ ਖਲ ਹੈ। गुरु की जो अगम्मी बाणी है जिस दी महानता गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह आप दसदे ने सब सुख मुक्त नाम धुन बाणी सच नाम उर धारी नाम बिना नहीं छूटस नानक साची तर तू तारी। जिहड़ी बाणी है हर प्रकार दा सुख बख्शदी है मुक्तिदायक है। जिन्हां ने इहदी धुन सुन लई जिन्हां ने हिरदे विच इस नूं धारण कर लिया सच दी प्राप्ति हो गई रोग सोग मिट गए। बाणी तो बिना गुरु पातशाह कहंदे ने नाम बिना नहीं छूटस नानक। नाम तो बिना नजात नहीं है बाणी तो बिना मुक्ति नहीं है। सो रोगां सोगां तो विकारां तो 84 दे गेड़ तो बाणी नजात दिवाउंदी है। इस बाणी दी अगम्मी विचार करन दा जतन करिए। गुरु अर्जन साहिब सच्चे पातशाह सहस्कृति दे श्लोकां विच हुक्म करदे ने गुर मंत्र हीणस जो प्राणी त्रिगंत जन्म भ्रष्टण है। जेड़ा बंदा गुरु तो दीख्या नहीं लैंदा गुरु दा मंत्र हासिल नहीं करदा ओदे जीवन ते कहंदे त्रिकार है ओदा जीवन फिटकार जोग है। हुण गुरमंत्र दा मतलब समझियो हर धर्म दे विच वखो वख गुरु ने ते वखो वख उन्हां दे मंत्र ने। गुरमंत्र हुंदा की है धर्म दा वो महावाक्य जो धर्म नूं मजहब नूं धारन दे समय उपदेश विच मिलदा है। धर्म दे अंदर जो मजहबी लफ्ज ने ना
उन्हां लफ्ज़ां चों खास लफ्ज़ चुन लए जाते ने और उही गुरमंत्र अखवाउंदे ने, उन्होंने जप के मनुखता जीवन सफला करती है। सिख जगत के अंदर गुरमंत्र है वाहे गुरु। कई बार असी शंके विच भी पै जाने हैं, शायद वाह गुरु गुरमंत्र है, नहीं, वाहे गुरु। अर्थ वाह गुरु का भी आश्चर्य है, जो अज्ञान नूं खत्म करता है, ज्ञान बख्शदा है। पर अगर तुसी गुरबाणी तो लैके इतिहासिक तत्थ फरोलोगे तो तुहानू वाहेगुरु लफ्ज़ 3 हिस्से मिलेगा, तो चौथा हिस्सा ही 1-2 बार वाहगुरु लफ्ज़ मिलता है। सो अपनी मत वर्तन नालों जितने भी सिख जगत के अंदर इतिहासकार ने, महापुरुष होए ने, जिन्हां दियां लिखतां ने, कुछ ऐसियां लिखतां जिन्हां बाणी का रुतबा मिलिया है गुरु अर्जन साहब के दर तो, गुरु गोबिंद सिंह के दर तो, उन्होंने ध्यान विच रखना चाहिए है। गुरु ग्रंथ साहब विच भी चौथा हिस्सा वाहगुरु लफ्ज़ आया, 3 हिस्से वाहेगुरु लफ्ज़ आया है। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो, सत साच श्री निवास आद पुरख सदा तू ही, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो। वाहेगुरु क्या किसनू है? जो सत है, जो सच है, जो आद पुरख है, रचना तो पहला दा है, जिसनू कलगीधर कहते ने आद अंत एक है, अवतारा सोई गुरु समझो हमारा। परमात्मा की बाबत आया है, हु इज फॉर एवर, सदीवी जो रहन वाला है। ही इज द प्राइमल बीइंग, सब तो आद है वो, असी रहीए या ना रहीए वो रहन वाला है। हुण आओ गुरु ग्रंथ साहब तो बाद श्री 10वें ग्रंथ ते। तुसी तकरीबन हर बाणी दे उपर एक लफ्ज़ पढ़ते हो, गुरु गोबिंद सिंह जो लिखते ने, एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री जो शिरोमणी है, वाहिगुरु आश्चर्य रूप जिहदा अंत ना पाया जा सके, उहदी सदा ही फतेह है। तुसी जितदे हो, तुसी हारदे हो, पर परमात्मा सदा ही जितदा है, उहदी सदा ही जित है। तुहाडी जित विच भी जित है, ते तुहाडी हार विच भी उहदी जित है, वह हरदा नहीं है। साडी अरदास विच भी, चंडी दी वार विच भी ये लफ्ज़ आउंदे ने। जदों भी श्री मुखवाक पातशाही 10वीं पढ़दे हो ते लफ्ज़ मिलते ने। 10वें ग्रंथ तो बाद आओ सिख जगत तो जिन्हां महापुरुषां दे वाकां नूं बाणी दा रुतबा हासिल है, वो 2 होए ने, भाई गुरदास ते दूजे भाई नंद लाल। भाई गुरदास दियां वारां ते आओ, चारों अक्षर एक कर वाहेगुरु जप मंत्र जपावै। आश्चर्य रूप परमात्मा दे नाम दा ही गुरमंत्र जपना ते जपाउणा है। कहंदे जहां ते उपजिया फिर तहां समावै, ते जेड़ा वाहिगुरु मंत्र दा अभ्यास करेगा, जिस अकाल पुरख तो पैदा होया है, जुदा होया है, उसे विच ही मिल जावेगा, उहदे विच इकमिक हो जावेगा। एक जगह होर कहंदे ने, सतगुर पुरख दयाल होए, वाहे गुरु सच मंत्र सुनाया। कहंदे मेरे ते दयालु हो के ना गुरु रामदास ने, गुरु अर्जन साहब ने मैनू मंत्र बख्शिया, वो केड़ा है? वाहे गुरु। सो ये साडा गुर मंत्र है। सच रास रह रास दे, पैरी पै जग पैरी पाया। ये सच्ची रास की कमाई जेड़ा भी करेगा, जगत उहदे पैरी आण पैंदा है, वह महापुरुष हो निबड़दा है। जन नानक सतगुर पूजिया तिन हर पूज करावा, उहदी पूजा हुंदी है। एक जगह होर भाई गुरदास कहंदे ने, वाहे गुरु गुर मंत्र है जप हौमै खोई।
हुण जगह जगह ये जिक्र मिल जाता है। ये बाद आओ पहली उदाहरण गुरबाणी गुरु ग्रंथ साहिब दी, दूसरी दसम ग्रंथ दी बाणी दी, तीसरी भाई गुरदास दी बाणी दी, चौथी उदाहरण है भाई नंद लाल जी दी बाणी दी। सिफत सनाह पुस्तक पढ़िओ भाई नंद लाल दी। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ गुरु गोबिंद सिंह ने मैनू वाहिगुरु गुरमंत्र बख्शिया है। ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਨਦੀ ਸਾਗਰ 'ਚ ਮਿਲ ਗਈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਨਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਹੀ ਮੰਤਰ ਜਪਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੀ दूसरी रचना गंजनामा पढ़ते हो, पर भी फारसी दी रचना दी आरंभता दे विच आउंदा है वाहेगुरु जीओ सत। सदीवी है परमात्मा आश्चर्य रूप। सो भाई नंद लाल भी वाहेगुरु लफ्ज़ ही वरतदे ने। इहदे बाद आओ महापुरुष जिहड़ा सच दी खातर, धर्म दी खातर, इंसानियत दी खातर बंद बंद कटवा गया। ਉਹਦੇ पाक हस्त कमल गुर बिलास दे विच लिखदे ने वाहिगुरु ही गुरमंत्र है। भाई मनी सिंह ये पंजवीं उदाहरण है। ते छेवां पख जदों गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दे हुक्म विच अमृत संचार होया ना, खंडे दी पहुल तैयार हुई, ते महाराज ने पंजां प्यारियां नूं वाहिगुरु गुरमंत्र बख्शिया। हुण लोकाई भी अमृत छके, खंडे दी पौल छके, गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने आप अमृत छकिया, आप खंडे दी पौल लई, जिस कारण हज़ारां ही प्राणी नंदा दी पुरी विच उस समय 1756 बिक्रमी संमत 1 विसाख 1699 दी विसाखी ते खंडे दी पौल प्राप्त करता है। कई दिन अमृत संचार हुंदा रहा सी, क्योंकि संगत बड़ी सी। गुरु के साहिबजादियां भी अमृत छकिया है। बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह। गुरु के महिला ने भी अमृत छकिया है। माता साहिब कौर, माता सुंदर कौर होना ते गुरु दी माता मां गुजरी ने भी अमृत छकिया है। गुरां दे मामा बाबा कृपाल चंद जी ने भी अमृत छकिया है। हुण गुरु पातशाह ने वेखो हुक्म कीता है, जदों अमृत छकाउंदे ने ना 5 वार, जदों मूँह ते छिट्टे मारदे ने उस पाक जल दे ते हुक्म करदे ने 5 प्यारे, उदों 5 छिट्टियां नाल 5 वार आपां बोलदे हैं वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। फिर 5 वार नेत्रां विच पौल दे छिट्टे मारे जांदे ने, फिर 5 वार फतेह, फिर 5 वार केसां विच पौल दे छिट्टे मारे जांदे ने, फिर 5 वार फतेह। सो वार वार वाहिगुरू लफ्ज़ वरतिया जांदा है। सिख जगत दे विच ये मर्यादा है भी गुरमंत्र दा टीका 5 प्यारियां कोल ही है, उही तुहानूं ला सकदे ने। असीं गुर दिखिया 5 प्यारियां तो लैने आ, क्योंकि कलगीधर पातशाह ने कह दिता सी मेरा शब्दावतार गुरु ग्रंथ साहिब है, ते मेरे जामे दे दिदारे करने होण सरगुण दिदारे, ते 5 त्यार बर त्यार ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ दर्शन कर लियो, 5 ककारी ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ मेरे दर्शन हो जाणगे। इन पंचन मैं मेरो वासा, 5 ਸਿੰਘਾਂ च कहंदे मेरा वासा है। महाराज ने अमृत छकाया, आप बीर आसन ला के कहंदे मैनू भी अमृत बख्शो। 5 प्यारे निर्माणता विच आए, पातशाह तुसीं अमृत दे दाते हो, सरबग हो, तुसीं अमृत बख्शण वाले हो, असीं कौन आ तुहानूं अमृत देण वाले। गुरु साहिब कहंदे मैनू परमात्मा दा कुछ ऐसा ही हुक्म है, जो मैं खंडे दी पौल तैयार कीती है, मैं खालसा पंथ साजिया है, फिर खालसे कोलों आप पौल प्राप्त करके आपे गुरचेला दी मर्यादा कायम करनी है। गुरु खालसा ते खालसा गुरु बनाउणा है। जिन्हों बाबा नंद लाल जी ने कुछ इयों लिखिया है, वो महापुरुष कहंदे ने बादशाह दरवेश गुरगो बिंद सिंह। गुरु बादशाह है, जदों झोलियां भरदा है, पौल बख्शदा है,
दरवेश दर आवेश तो बनिया है। दर कहंदे ने दरवाजे नूं, आवेश दरवाजे ते लड़के रहन वाले नूं। पर रब दे दरवाजे ते कौन लड़किया रहिंदा है? साधु जन, संत, फकीर, निर्माणता च रहन वाले। कहंदे तू जदों अमृत दिना है बादशाह जापदा है, जदों बीर आसन ला के अमृत मंगदा है, पौल मंगदा है, ते तू एक दरवेश, एक फकीर, एक भिखारी पिया जापदा है। वाहो वाहो गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। खैर पंजां प्यारियां खंडे दी पौल पातशाह नूं भी दित्ती। सारे परिवार ने अमृत छकिया, गुरु क्या सिखां ने अमृत छकिया। सो उदों तो ये मर्यादा चल पई जदों तो गुरां ने पंजां प्यारियां तो पौल लई भी हर सिख ने गुरु दिखिया पंजां प्यारियां तो लैनी है, ते पंज प्यारे ही गुरमंत्र बख्शदे ने। वो की है? वाहे गुरु। सो इस मंत्र नूं धारने वाला सिख है, इस मंत्र नूं जपण वाला सिख है। दीन दुनिया दे मालक गुरु अर्जन साहिब सच्चे पातशाह यही समझाउंदे ने। कहंदे गुरमंत्र तो जिहड़ा प्राणी हीणा है ना, जिहड़ा नाम नहीं जपदा, गुरमंत्र दा अभ्यास नहीं करदा, त्रिकार है उहदे जीवन दे उत्ते। अजाई जांदा है उहदा जीवन, व्यर्थ जांदा है उसदा जीवन। गुर के भाणे विच अमृत है सहजे पावै कोई। गुरु दे हुक्म विच अमृत आपां छकदे हैं, चाहे बाणी दा है चाहे खंडे दी पौल है। जेड़ा हुक्म विच चलदा है जिन्ना प्राप्त तिन पिया, हौमै विचों खोए। उन्हां दा अहंकार मिट गया, वो परमात्मा विच अभेद हो गए। नानक गुरमुख नाम ध्याई है सच मिलावा होए। ते जेड़ा गुरु दे हुक्म विच चलदा है वो सच्चे परमात्मा विच अभेद हो जांदा है। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दा 20 जनवरी नूं प्रकाशपुर बारिया है। गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों महान गुरमत समागम होने ने। देशां देशांतरां विच प्रबंधक जन संगत दे सहयोग नाल समागम करदे ने। उस गुरु गोबिंद साहिब दी याद विच जो खंडे दी पौल बख्श के खालसा पंथ साज के भारत वर्ष दी जिहड़ी 1001 ईस्वी तो महमूद गजनवी दे समय तो गुलामी चली आउंदी सी, उसनूं 700-800 साल बाद पुट्टण वाला खालसा, वो खालसे नूं साजण वाला गुरु गोबिंद सिंह जिसनूं आपां याद करदे हैं। पोह सुदी 7वीं 1723 बिक्रमी संमत नूं जो दुनिया ते माता गुजरी दी कुख चों प्रगट होए, गुरु तेग बहादुर साहिब बापू दी गोद विच खेडे। ऐसे पातशाह हुण कई तर्क कर दिंदे ने, कादा गुरमंत्र जी, कोई अमृत छकाया ही नहीं, असीं क्यों मन्नीए पंजां प्यारियां दे दित्ते गुरमंत्र नूं। भाई साहब भाई नंद लाल कहंदे मैं बलिहारे जावां गुरु गोबिंद सिंह तो। पुछो जी किस कारण? कहंदे किहे जे इंसा मलक न मूं दस्त ओ इज्जते खाकियां फजू दस्त ओ। कहंदे क्योंकि इंसाना नूं मलक बना दिता, देवते बना दिता। नामूदस्त जाहिर है इंसाना नूं देवते बना दिता। किसने? कहंदे गुरु गोबिंद सिंह ने अमृत बख्श के। हुण अमृत बख्शिया है ते भाई नंद लाल कह रहे ने ना, ते गुरु गोबिंद सिंह दे हजूरी कवि ने, 52 कवियां चों एक ने। सो शंका चाहिदा ही नहीं है भी अमृत छकाया कि नहीं छकाया, वो महापुरुष कह रहे ने। बाणी की कहती है? बलिहारी गुर अपने द्योहाड़ी सदवार, जिन मानस ते देवते किए करत ना लागी वार। वो देवते बना दिंदा है, वो मलक बना दिंदा है, इंसान दी आदम दी जात तो महापुरुष बना दिंदा है। इज्जते खाकिया फजू दस्त ओ। इज्जत वडियाई नूं कहंदे ने, खाक मिट्टी नूं कहंदे ने। फजूदस्त फजूद वड्डियों वड्डा। गुरु गोबिंद सिंह मिट्टी विच रुलदे हुए किणकियां नूं सुमेर पर्वत बना दिंदा है। भाव भारत वर्ष दे गुलाम लोक पैरां विच लिताड़े जा रहे सन मुगलों वल्लों। खंडे दी पौल बख्श के, माला वाले हत्थां विच तलवार पकड़ा के गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने
ਖਾਲਸਾ ਸਾਜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਦਾ ਵਾਰਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਰੁਲਦੇ ਤਖਤ ਮਾਨਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰਧਾਮ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਿਸਨੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ? ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਮੁਗਲਿਆ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮਲਿਆ ਮੇਟ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਇਆ। ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ ਗਈ, ਵੋਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਖਤ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 700 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਮੱਲੀ ਸੀ। 17 ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਭਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੋਹਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵਾਧੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ 18ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਰਾਜ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੇ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਰੁਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ। ਕਿਵੇਂ? ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਬਖਸ਼ ਕੇ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਜੋ ਚੱਲੈ, ਤੇ ਸੋ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਹੋਏ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਉੱਤਮ ਮਨ ਵਸੈ, ਮੇਟ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਹੀ ਵਿਲ obtains ਦਾ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਗਲੋਰੀ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੈਤਾ, ਜਿਸਨੇ ਦਿੱਲੀ ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਖੜਿਆ, ਔਰ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਰੰਗਰੇਟਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੇਟਾ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਿਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਜਪ ਜਾਪ ਸਵਈਏ ਚੌਪੀ ਆਨੰਦ, ਸੋ ਪਾਠ ਸੋ ਪਾਹੁਲ ਤਿਆਰ ਕਰੀਜੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਪ ਜਾਪ ਸਵਈਏ ਚੌਪੀ ਆਨੰਦ, 5 ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਹੁਲ ਬਣਾਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਛਕ ਕੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਬਣਿਆ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗਾ, ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਚੱਲ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ, ਰਹ ਹੈ ਅਤੀਤ ਸੱਚੇ ਸਰਣਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗਾ, who will obeys the Guru's command, ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਦਾ ਅਤੀਤ परम पद पावेगा, माया तो निर्लेप हो जावेगा, नजात हासिल करेगा, मुक्त होवेगा। बाणी कहती है हुक्म रजाई जो चलै सो पवै खजाना। अकाल पुरख दे खजाने विच खरे ओही मन्ने गए, ओही ओदे चरनां विच अभेद होए जिन्हां गुरु दा हुक्म मन्निया। खोटे ठहर ना पाई नी, रले जूठाना। ਜਿਹੜੇ ਖੋਟੇ ਨੇ, ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰੁਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੀਣਸ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੀਣਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਤ੍ਰਿਗੰਤ ਜਨਮ ਪ੍ਰਸ਼ਟਣ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਗ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਧਿਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤ੍ਰਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਂਤ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਖੋਟਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜੋ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭੈੜੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਨੇ, ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਪਾਕ ਮਨੁੱਖੇ ਜਾਮੇ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਗਵਾ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਜੀਵਨ ਅਜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੰਤਰ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹੇ, ਜੋ 5 ਪਿਆਰੇ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਮਹਾ
ਮੰਤਰ ਮੰਤਰੰ ਮਹਾਕਾਲ ਕਾਲੰ। ਕਲਗੀਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲ ਦਾ ਕਾਲ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਂ ਚੋਂ ਮਹਾ ਮੰਤਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜੋ ਅਚਰਜ ਰੂਪ ਹੈ। ਹੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੋਸਟ ਇਫਲਜੈਂਟ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੰਤਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਮੰਤਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ? ਚਲਤ ਬੈਸਤ ਸੋਵਤ ਜਾਗਤ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਹਿਰਦੈ ਚਿਤਾਰ। ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਸੌਂਦਿਆਂ ਜਾਗਦਿਆਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਇਸ ਮੰਤਰ ਦਾ। ਚਰਨ ਸਰਣ ਪਜ ਸੰਗ ਸਾਧੂ ਭਵ ਸਾਗਰ ਉਤਰੈ ਪਾਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੇ, ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਸੌਂਦਿਆਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰੇ, ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਵੇਂਗਾ ਤੂੰ। ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਰੋਗਾਂ ਸੋਗਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰ ਮੰਤਰੜਾ ਚਿਤਾਰ ਨਾਨਕ ਦੁੱਖ ਨਾ ਥੀਵਈ। ਜੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਰੇਗਾ, ਚੇਤੇ ਰੱਖੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਅੰਧਕਾਰ ਮਹਿ ਗੁਰਮੰਤਰ ਉਜਾਰਾ ਗੁਰ ਕੈ ਸੰਗ ਸਗਲ ਨਿਸਤਾਰਾ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਰੋਗਾਂ ਦੇ, ਸੋਗਾਂ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਚਾਨਣ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਚਾਨਣਾ ਹੈ ਉਹ। ਜਿਹੜਾ ਜਪੇਗਾ ਗੁਰ ਕੈ ਸੰਗ ਸਗਲ ਨਿਸਤਾਰਾ, ਉਹ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਐਮੈਂਸੀਪੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਰੋਗ ਸੋਗ ਉਸਦੇ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ। ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ। ਤੇ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਵੀ ਪਾਰ ਲੱਗਣਗੇ। ਸਗਲ ਨਿਸਤਾਰਾ। ਸੋ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੀ ਬੜੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੰਤਰ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤ੍ਰਿਕਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਕੁਝ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕੂਕਰ ਹੈ ਸ਼ੂਕਰ ਹੈ ਗਰਦਬ ਹੈ ਕਾਕ ਹੈ ਸਰਪ ਨ ਹੈ ਤੁਲਖਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ, ਮੂਰਖ, ਅਗਿਆਨੀ, ਗਾਫਲ। ਉਸ ਮੂਰਖ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਕੂਕਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਸ਼ੂਕਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸੂਰਾਂ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਗਰਦਬ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਖੋਤੇ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਗਧੇ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਉਦਾਹਰਣ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਪ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੁੱਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ, ਸੂਰਾਂ ਦੇ, ਸੱਪਾਂ ਦੇ, ਗਧਿਆਂ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੰਤਰ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਭਏ ਕੂਕਰ ਕਾਮ। ਬਿਨਾਂ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਰਮ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕੁੱਤਾ ਕਾਮੀ ਬੜਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਮ ਵਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਕੂਕਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਇਹ ਭੈਣ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਕੂਕਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਲਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਭੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਹਲਕੇ ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗੂ ਘਾਤਕ ਹੈ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਢ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਭ ਬਦਲੇ ਪਿਓ ਦਾ ਵੀ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਭ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੁਰਦਾਰ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਬੰਦਾ ਕੂਕਰ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਹਰੇ ਕੁੱਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ, ਸਾਖਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ। ਕੁੱਤਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਦਰ ਦੀ ਬੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਫਾਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਡਾਂਗ ਵੀ ਮਾਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੁਆਮੀ ਕੋ ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਉ ਸਦਾ ਸਵਾਨ ਤਜਤ ਨਹੀਂ ਨਿਤ ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਿਦ ਹਰ ਭਜੋ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਏ ਇੱਕ ਚਿੱਤ। ਸਵਾਮੀ ਦਾ ਦਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁਣ ਤੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਵ ਕੂਕਰਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਹੈ ਉਹ। ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੂਕਰ, ਸੂਰ। ਜਿਹੜਾ ਸੂਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ,
नाम तो हीणा बंदा काम क्रोध लोभ मोह हंकार रूपी गंदगी खांदा है। सूकर तो बाद जेड़ी अगली उदाहरण पातशाह ने वरती है, महाराज इत्थे गरदबह गधे की गल करते ने। गधा की करदा, भार उठाउंदा है। साकत बंदा, नाम तो हीणा बंदा गैरां दी निंदिया करके उन्हां दे नाल गुणां दी सांझ पाउण दी बजाए औगणां नूं फरोल के निंदिया करन रूपी भार उठाउंदा है। इहदे तो बाद गरदबह तो बाद दीन दुनिया दे मालक ने काकह लफ्ज वरतिया है। कां विष्टा खांदा है, कां गंदगी विच चुंझ मारदा है, ते विष्टा महाराज ने निंदा नूं कहा है। किसे दे गुण अवगण फरोली जाने। महाराज कहंदे जिवें कां गंदगी विच चुंझ मारदा है, इदां विकारां विच, काम क्रोध विच, लोभ विच, निंदा विच, चुगली विच जेड़ा साकत मनमुख बंदा है वह चुंझ मारदा है। अच्छा, सूर दे विच एक गुण है भी वो ना जिथे रवे ना उतों दी गंदगी खा के उस कस्बे दी पिंड दी सफाई रखदा है। ते कबीर जी कहंदे जेड़ा साकत बंदा है ना वह सूर नालों भी भैड़ा है। उन्होंने बचन किया, कबीर साकत ते सूकर भला राखै आशा गाओ, ओहो साकत बपरा मर गया कोई ना लै है नाओ। कहंदे सूकर ते फिर भी शहर दी कस्बे दी सफाई करदा है, साकत ते गंदगी ही फैलाउंदा है। आप टुटिया है रब तो होरां नूं भी तोड़दा है। आप विकारां दी गंदगी विच डुबिया है, होरां नूं भी विकारां दे विच नाल लैके डुब जांदा है। आप निंदा करदा है, होरां नूं भी निंदा करन ला लैंदा है। सो इत्थे महाराज कहंदे जिहदे कोल नाम नहीं है ना वो मूर्ख इंसान। अगली उदाहरण दिती, सप वर्गा है। सप की करदा है? डंगदा है, जहर उगलदा है। मनमुख बंदे कोलों जदों भी वेखोगे निंदा रूपी जहर ही प्रगट होवेगी, ईरखा दी जहर ही उगलदा रहेगा। एवें आंडियां गुआंढियां नाल सिर फसाई फिरदा है। जिहड़े रब दे गीत गाउंदे ने उहदे आनंद विच चौंकड़ा ला के बैठे ने। साकत बंदा एवें लोकां नाल झगड़ेगा, एवें निंदा करेगा, एवें ईरखा वस सड़दा रहेगा, जहर उगलदा रहेगा, भद्दे अल्फाज कढेगा, मूँह दे विचों मैल कढेगा, गंदे बोल कढेगा। सो महाराज इत्थे समझाउंदे ने गुरमंत्र तो हीणा बंदा सूकरां सूरां कुत्तियां बिल्लियां दियां जूनां विच पैंदा है। उहदा सुभाਅ मनुखे जामे विच भी इन्हां भद्दियां जूनां वर्गा हुंदा है। अगां उसनूं जूनां भी ऐसियां ही मिलदियां ने। तुसीं बाणी नूं ध्यान नाल पढ़ो, ये ना समझिओ भी इत्थे कल्ले सुभाਅ दी गल है ते ये जूनां विच इंसान नहीं जांदा। बड़ी लंबी कतार है 84 लाख जूनां दी। साफ गुरु ग्रंथ साहिब ने एक बचन कहा है, सूकर कूकर जोन भ्रमे तो लाज ना आई। कहंदे बंदिया तू कुत्ते दी सूर दी जून चों आया है, ऐसियां तू कई जूनां भोगियां। तुसीं पढ़दे हो ना, कई जन्म भये कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैवर बृख जोयो। इदा 1,84 जोन परमाया। तू 84 लाख जून चों आया है, तो लाज ना आई। हुण मनुख बन गया, तेनू लाज नहीं आउंदी, शर्म नहीं आउंदी। फिर तू पशुआं वाले कर्म करदा है, करतूत पशु की मानस जात। पशु की करदा है? चारा खाणों नहीं हटदा, चारा खा के सौ जाता है, सुता रहिंदा है, कामवश होया औलाद पैदा कर लैंदा है, तो फिर चारे बदले सिंग फसा लैंदा है, खुरली ते झगड़दा दूजे पशुआं नाल। यही कुछ बंदा कर रहा है। खाणों नहीं हटदा, खा के सुता ही रहिंदा है, औलाद पैदा कर ली, कामवश हो गया, मुर्दार खादा, जिवें पशु चारे लई लड़िया है, पैसे लई लड़िया, दूजे दा हक खादा, एवें सिंग फसा छड्डे। अच्छा कहंदे की है? बंदा बन गया है 84 लाख जून तो बाद
दोवां लत्तां ते तू आ गया, पर करतूत पशु की मानस, जात करतूत ओही पशु वाली। जे नाम ना जपिया, बाकी जिन्ने कर्म ने कंपैरेटिवली तुसीं आप ध्यान मारियो, ये पशु भी करते ने जो असीं कर रहे हैं। एक नाम नहीं वो जपदे। जे नाम जपांगे सानू नजात मिलेगी, मुक्ति मिलेगी, 84 दा गेड़ मुक जावेगा। महाराज कहंदे सूकर कूकर जोन भ्रमै तो लाज ना आई, राम नाम छाड़ अमृत काहे बिख खाई। नाम रूपी अमृत छड्ड के क्यों विषयां विकारां दी मैल खांदे हो, जहर खांदे हो। ये जूना ने इन्हां नूं बयान कीता है बाणी विच। इन्हां जूना विच गुरमंतर तो हीणा प्राणी पैंदा है। मुक्ति दाता की है? अकाल पुरख दा नाम जो गुरु बख्शदे ने। सतगुर दाता मुक्त कराए, गुरु ही मुक्ति देण वाला है, गुरु ही निजात बख्शण वाला है। गुरु ग्रैंड्स लिबरेशन। मुक्ति चाहुंदे हो नाम जपो, नहीं ते कूकरां सूकरां दियां जूनां ते इत्थे बणीਆਂ ही होईयां ने। सो अगले श्लोक विच महाराज हुक्म करदे ने, चरणार बिंद भजनं और हृदयं नाम धारण है। ते कहंदे दूसरी तरफ गुरमुख है, जिन्हें गुरमंत्र लिया, जिन्हें परमात्मा दे नाम दे गीत गाए। चरणार बिंद, जेड़ा मनुख अपने हिरदे विच परमात्मा दे चरनां दा ध्यान धरदा है, भजनं परमात्मा दे नाम दा भजन करदा है, हृदयं हिरदे दे अंदर याद करके अकाल पुरख नूं गलूए तो गाउंदा है। नाम धारना है, हिरदे विच चरण धार ले ते जुबान नाल नाम धार लिया। अकाल पुरख दे जिसने गीत गाए ने। चरणार बिंद जेड़ा लफ्ज़ है ना, ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਕੀ है? चरण ते आपां नूं पता पैरां नूं कहिंदे हां, अरविंद कमल नूं कहिंदे ने। अकाल पुरख जिस दे पाक चरण कमल वर्गे सुंदर ने, पवित्र ने, पाक ने। अगे है भजन। भजन का मतलब सेवा भी है, भजन का मतलब बंदगी भी है। गुरु दे चरनां दी सेवा करनी, परमात्मा दे चरनां दी सेवा तो भाव हिरदे विच ओहदा नाम टकाउणा, ओहदा कीर्तन गाउणा, पूजन करना, उसनूं सेवन करना, उहदे गीत गाउणे। रिद, ये जिहड़ा रिदा लफ्ज़ है, रिद ये छाती नूं कहिंदे ने, सीने नूं कहिंदे ने, दिल नूं कहिंदे ने, मन नूं कहिंदे ने। सो गुरु पातशाह कहिंदे ने, जिसने अकाल पुरख दा नाम हिरदे च धार लिया है। संस्कृत विच नामन कहिंदे ने, फारसी दे विच नाम कहिंदे ने। हुण जिहड़ा अकाल पुरख दा नाम है, जिहड़ा अकाल पुरख दा हुक्म है, जिसनूं बाइबल ने वर्ड लफ्ज़ करके लिखिया है। सो अकाल पुरख दे नाम दा जो अभ्यास करदा है, उहदे चरनां दा ध्यान धारदा है, हृदय दे विच अकाल पुरख नूं पकड़ लैंदा है, जकड़ लैंदा है, रख लैंदा है, टिका लैंदा है। अगे महाराज उहदे बारे आखण लगे, कीर्तनं साध संगेण नानक नह दृष्टंत जमदूत न है। इउं जेड़ा चरना नूं अकाल पुरख दे पाक चरणार बिंद कमल वर्गे चरना नूं हिरदे च टिका लैंदा है। महाराज कहंदे नाम जपदा है, अभ्यास करदा है, बाणी पढ़दा है, गुरमंत्र नूं धार लैंदा है। कीर्तनं साध संगेण नानक, अकाल पुरख दी कीर्ति गाउंदा है साधुआं विच बह के, संगत विच बह करके। कीर्तन तो भाव व्याख्यान, कथावां, अकाल पुरख दी जय जयकार, जय जयकार दे गीत धुनां दे नाल गाउणे, प्रेम दे नाल गाउणे। साध संगेण, साधु संत नूं कहा है जिन्हें मन साधिया है। साध संगत गुरमुखां दी संगत नूं कहा जांदा है। जिहड़ा पूर्ण कर चुका है अपने महान सत संतोख रूपी गुणां नूं,
पूर्ण याब हो चुका है, कामयाब हो चुका है, परमात्मा की प्राप्ति कर चुका है, उन्होंने साध किया जाता है। समुचे तौर पर जो संगत इकट्ठी हुंदी गुरु के दर ते उसनूं भी साध संगत कह दिता जाता है। सो महाराज आखण लगे कीर्तन करया करो, भाव बाणी पढ़िया करो, काल पुरख दे गीत गाया करो साधुआं दी संगत विच बैठ के। संगत दा बड़ा असर हुंदा है। चोरां दी संगत चोर बना दिंदी है, साधां दी संगत साध बना दिंदी है, ठगां दी संगत ठग बना दिंदी है। सो जिहड़े नाम जपदे ने उन्हां दी संगत विच बैठ के जपना सौखा है, क्योंकि सारे इक्के लहर विच ही वहिंदे जा रहे ने, सारे एक पासे नूं ही चल रहे ने। जिथे विपरीत बुद्धि दे लोग होण उत्थे मुश्किल है चौंकड़ा लाउणा, बाणी पढ़नी, उत्थे कलयुगी बातां चलणगीਆਂ। सो कहंदे संगत विच बैठ के नाम जपना है। फिर होवेगा कि न है दृष्टंत जमदूत न है। दृष्ट दा मतलब है नजरी आउणा, इत्थे है न है दृष्टंत, उसनूं नजरी नहीं आवेगा कि जमदूत, जम दे सिपाही, जमगण जो जमा दे अधीन चलदे करिंदे ने, जो मौत दा देवता है उसदे जेड़े करिंदे ने। बाणी कहंदी है सिमरत नाम कोट जतन भये, साध संग मिल हर गुण गाए, जमदूतन को त्रास अहे। जेड़ा गुरु दी संगत विच साधुआं दी संगत विच आके अकाल पुरख दे गीत गाउंदा है ना, महाराज आखण लगे जमदूतन कहो त्रास अहे। जमदूत भी उतों डरदे ने। पावो मुक्ति दाता अकाल पुरख उन्होंने मुक्ति दे दिंदा है। मर्जी नाल आउंदे ने, मर्जी नाल जांदे ने। जन्म मरण दुहू मैं ना ही जन पर उपकारी आए। मौत दा देवता उन्होंने छू नहीं सकता। बाणी दा फरमान है अनाथा नाथ भगत पै मेटन, साध संग जमदूत ना पेटन। उन्होंने मौत का देवता नहीं मिलता, मौत उन्होंने पै पीत रहिंदी है। मर्जी नाल दुनिया ते आगाज हुंदा है, मर्जी नाल उमर भो के वो चले जाते ने। दूसरा पक्ष ये समझियो ना जमदूत दुख तिस लागै, जो जन राम नाम लिव लागै। जमदूतां दा दुख, मरण दा दुख, जम्मण दा दुख उन्होंने नहीं लगता। भाव वो जम्मण ते मरण तो रहत हो जाते ने। उन्होंने मौत का डर नहीं रहिंदा, उन्होंने मौत का भय नहीं रहिंदा। किन्हां नूं जिहड़े बाणी पढ़दे ने, जिहड़े गुरमंत्र दे धारनी ने, जिन्हां ने अकाल पुरख दे चरण हिरदे च टिकाए ने, साधुआं दी संगत विच बैठ के अकाल पुरख दे गीत गाए ने, वो मुक्त हो जाते ने। जिवें साखत बंदा गुरमंत्र तो हीणा डुब जाता है, ते बाणी पढ़न वाला गुरमंत्र दा धारनी जमदूतां तो मौत तो रहत होके मुक्ति हासिल कर लैंदा है। अगे श्लोक विच पातशाह दसदे ने भी ये जिहड़ा अकाल पुरख दा नाम है, गुरमंत्र है, इहदा अभ्यास करना, इसनूं प्राप्त करना बड़ा औखा है, बड़ा अमुला ये नाम है। ये सौखा नहीं है प्राप्त करना। होर सब कुछ सुखाला मिल जाता है, नजरी आ जाता है। अकाल पुरख दा नाम औखा मिलता है। अकाल पुरख दे दिदारे बड़े औखे हुंदे ने। महाराज हुक्म करते ने अगले श्लोक दे विच नच दुर्लभं तनंग रूपं, नच दुर्लभं स्वर्ग राज न है। गुरु पातशाह आखण लगे नच, नच दा भाव है नहीं। कहंदे ये कोई वड्डी गल नहीं है, ये कोई दुर्लभ वस्तु नहीं है। धन जतन करो तो धन मिल जाता है, मुशक्कत घालो धन मिल जाता है, पैसा इकट्ठा कर लईदा है, कोई औखा काम नहीं है। जे तुसीं सुंदर रूप देखना है तो बड़े बड़े सुंदर स्वरूप वाले इंसान तुहानू नजरी आ जाते ने, जिन्हां दा रूप बड़ा सुंदर है, बड़ी खिच है जिन्हां दे रूप विच। नैण नक्श बड़े सुंदर ने, धनवान बड़े लभ पैणगे। धन की प्राप्ति तुसी सुखाली कर सकते हो मुशक्कत घाल के। चंगा रूप मिल जाता है, तुहानू नजरी आ जाएगा।
दुर्लभ की है जिसका लभना बड़ा कठिन होवे। कहंदे पर ये दुर्लभ नहीं, ये मिल जाते ने। अगे पातशाह गुरु अर्जन साहब आखण लगे, नच दुर्लभं स्वर्ग राज न है। स्वर्गां दा राजा इंद्र है। कई बार दैंता ने उहदा तख्त खोया है, कई बार इंद्र नूं वो तख्त हासिल होया है। बंदगी करन वाले नूं स्वर्गां दा राज भी प्राप्त हो सकता है। व्यापत सुरग नरक अवतार, जिहड़े कहंदे सुरग नरक नहीं हुंदे, गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे हुंदे ने। पाप करोगे ते नरक विच अवतार मिलेगा, चंगे काम करोगे ते स्वर्ग विच मिलेगा। जे अकाल पुरख दे गीत गा के अकाल पुरख विच अभेद होगे ते सचखंड मिलेगा, अकाल पुरख दे चरण प्राप्त होणगे। जिवें कहंदे ना, बदत तिलोचन ते नर मुखता पीतंबर वाकै हृदय बसै, अंतकाल नारायण सिमरै, ऐसी चिंता महजे मरै। जिहड़ा अकाल पुरख नूं याद करदा वो अकाल पुरख दे चरनां च पहुंच जांदा है। खैर, स्वर्ग दा राज भी कहंदे प्राप्त करना कोई औखा नहीं है। अगली पंक्ति है, नच दुर्लभं भोजनं बिजननं, नच दुर्लभं स्वश अंबर है। गुरु अर्जन साहब आखण लगे, चंगा भोजन प्राप्त करना, 36 प्रकार दे भोजन प्राप्त करने, ये कोई औखा काम नहीं। पर नाम रस प्राप्त करना ये औखा काम है। भोजना दे रस मिल जाते ने, भोजन मिल जाते ने। बिजनंग, जेड़ा बिजनंग लफ्ज है ना, व्यंजन का भाव हुंदा है भोजन। व्यंजन का भाव हुंदा है 36 प्रकार दे पदार्थ, बड़े स्वादिष्ट पदार्थ, छकण जोगे पदार्थ। जां व्यंजन लफ्ज उस पदार्थ लिए भी आया जिहदे नाल आपां प्रशादा ला के खांदे, जिन्हों लावण भी कह दिंदे। कोई सब्जी, कई प्रकार दे जिहड़े भोजन ने, कहंदे ये सौखे ही लभ जांदे ने, कोई वड्डी गल नहीं है। महाराज अगे दीन दुनिया दे मालक एक गल कहंदे ने, नच दुर्लभं स्वश अंबर है। स्वश कहंदे ने साफ नूं, ते अंबर कहंदे ने वस्त्रां नूं, कपड़े नूं। सुंदर वस्त्र भी मिल जाते हैं, साफ वस्त्र भी मिल जाते हैं। मुशक्कतां घालो, कमाई करो, चंगे तुसीं कपड़े पहन सकते हो, चंगा पा हंडा सकते हो, निर्मल वस्त्र भी तुहानूं लभ जाते हैं। अगे महाराज आखण लगे, नच दुर्लभं सुत मित्र भ्रात बांधव, नच दुर्लभं बनिता बिलास है। इत्थे लफ्ज है मित्र, सखे नूं, सज्जण नूं, दोस्त नूं कहंदे ने। इत्थे महाराज एक होर लफ्ज वरतदे ने, सुत, वो पुत्र नूं कहंदे ने। औलाद भी हो जाती है कहंदे। दाता अकाल पुरख दिंदा है, गुज्जी शनी नाही बात, गुरु नानक तुठा कीनी दात। औलाद मिल जाती है। परमात्मा दे अगे अरदास करिए सुन लैंदा है। बच्चे मिल जाते ने, मित्र मिल जाते ने, भराता भाई मिल जाते ने, जेड़े बांधव ने, संबंध रखण वाले जेड़े बंधु ने, सज्जन मित्र ने, नाती ने, रिश्तेदार ने, वो भी जदों दो परिवार मिलते हैं, गृहस्थ शुरू होंदा है, रिश्तेदार भी मिल जाते हैं। वनिता, एक लफ्ज वनिता है, वनिता वावे तो उहदा भाव हुंदा स्त्री। हुण एक फारसी दे विच लफ्ज आउंदा है बिनत, बेटी नूं कहंदे ने। इउं जापदा है जिवें संस्कृत दा वनिता लफ्ज जिहड़ा है ना, इहदे तो ही परशियन दा, फारसी दा बिनत लफ्ज बेटी बनिया है। इहदा भाव है स्त्री। घर वाली भी सुंदर मिल जाती है, परिवार भी वध जाता है, ते घर वाली दे नाल प्रेम दे बिलास भी हासिल हो जाते हैं। गल्लां बातां भी तुसीं कर लैंदे हो, आनंद भोग लैंदे हो, क्रीड़ा कर लैंदे हो, गृहस्थ दे संबंध बन जाते हैं। ये सब कुछ प्राप्त हो जाता है। अगे कहंदे, नच दुर्लभं विद्या प्रवीणं, नच दुर्लभं चतुर चंचल है। विद्वान होना भी कोई औखा नहीं है, मुश्किल नहीं है। तुसीं मेहनत करो, किताबां पढ़ो, विद्या दे विच तुसीं प्रवीण हो जाओगे। विद्या ज्ञान नूं कहंदे ने, इल्म नूं कहंदे ने। पर बाणी कहंदी मुक्त नहीं विद्या विज्ञान। दुनियावी किताबां पढ़ के जे आखो मुक्ति मिल जाएगी
ये नहीं मिलती। 36 प्रकार के भोजन प्राप्त होए, सुंदर इस्त्री प्राप्त होई, साग संबंधी चंगे प्राप्त होए, लायक पुत्र प्राप्त हो गया, ज्ञानी तुसी बन गए, इन्ने नाल मुक्ति मिल जावे, नहीं मिलेगी। प्रवीण हो गए तुसी, निपुण हो गए, चतुर हो गए, सूझवान हो गए, कहते औखा कम नहीं है, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। दीन दुनिया दे मालक आखण लगे, नच दुर्लभं चतुर चंचल है। चतुर होना, चलाकियां करनियां जां चतुर बंदे लभ लैने, चंचल बंदे लभ लैने, ये भी कोई औखा कम नहीं है। चलाएमान इंसान, जिन्हां दी सुरती एक जगह तो दूजी जगह जावे, बड़े चुस्त फुरत इंसान लभ जाते ने, चातुर इंसान लभ जाते ने, चाणक्या वर्गे। औखा की मिलता है, मुश्किल की मिलता है, अमुला की है। अगे दीन दुनिया दे मालक अखीरली पंक्ति विच कहंदे ने, दुर्लभं एक भगवान नाम है, नानक लभदियं साध संग कृपा प्रबं। कहंदे जे औखा है, अमुला है, वो है परमात्मा दा नाम हासिल करना। वो लभदा है साधुआं दी संगत चों, पर संगत विच आके भी हर एक नूं प्राप्त नहीं हुंदा। किस नूं प्राप्त हुंदा है? साध संग कृपा प्रभं, जिन्हां ते अकाल पुरख दी कृपा हो गई। नाम ते सारे ही मंगदे ने, जेड़े गुरु घर आए कादे लई आए? जिन्हां नूं समझ आ गई गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया, भई प्राप्त मां नुख दे हुरिया, अवर काज तेरा किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। ये मनुखा जामा रब दी प्राप्ति लई मिलिया है, पर नाम हर एक नूं प्राप्त नहीं हुंदा। जिन्ना भाग मथाहे से नानक हर रंग मान दे, साईं नाम अमोल कीम ना कोई जान दो। अकाल पुरख दा नाम अमुला है, लभदा सत संगत विचों है, मिलदा उसनूं है, प्राप्त उसनूं हुंदा है, हिरदे विच उसदे टिकदा है, जेदे ते अकाल पुरख दी किरपा हो जांदी है। ते जे अकाल पुरख दी किरपा ना होवे फिर ये नाम नहीं प्राप्त हुंदा, परमात्मा दे दिदारे नहीं हुंदे। गुरु दी किरपा दे सदका ही अकाल पुरख मिलदा है। जिवें बाणी दा पाक फुरमान है, संत सभा गुर पाईऐ, मुक्त पदारथ धेन। साधुआं दी संगत करो, गुरु मिले, गुरु किरपा करे, मुक्ति मिले, अकाल पुरख मिले, फिर जीवन सफला है परमात्मा दी अकाल पुरख दी प्राप्ति दे नाल। ऐसी अगम्मी विचार सहजकृति दे श्लोकां दी गुरु अर्जन साहब साडे भले हित बख्शदे ने। दास इत्थे ही विचार नूं संकोचदा है। आप सरबत संगतां दा धन्नवाद। श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दा कोटान कोट धन्नवाद। बड़े ही सत्कारयोग सिंह साहिब ज्ञानी रंजीत सिंह जी हुणी, जो बड़े सहज दे नाल आप संगत नूं गुरु का वाक कथावां सरवण करवाउंदे ने, प्रेर के गुरु घर दीआं सेवावां करवाउंदे ने, उन्हां दा धन्नवाद। समूह ही गुरु के वजीरां दा धन्नवाद। और दिल्ली दे अंदर इतिहासक स्थानां दीआं महान सेवावां करन वाले महापुरुष बाबा बचन सिंह जी, संत बाबा हरनाम सिंह जी खालसा, मुखी दमदमी टकसाल पिंडरां वाले, महापुरुष बाबा कश्मीर सिंह जी पूरी वाले, समूह सतपुरुषां दा धन्नवाद है जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।